Hello students, welcome to our YouTube channel. So students, today we will discuss about our next topic in talent management, and topic name is job design. So what is job design? So we will move to our topic now. Job design. Job design follows job analysis, that is it is the next step after job analysis. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जॉब एनालिसिस डिस्कस किया था कि व्हाट इज जॉब एनालिसिस. In job analysis we have discussed about its components also, that job description and job specification. Now we will move to our next topic, job design. So job design हमेशा ही next step रहता है job analysis का. It always follows job analysis. It aims at outlining and organizing tasks, duties and responsibilities into a single unit of work for the achievement of certain objectives. तो एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क, सिंगल यूनिट में ही पूरे जॉब को अरेंज करना चाहता है. जॉब डिजाइन में हम करते क्या है, जॉब को डिजाइन करते हैं, प्रॉपरली सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन करते हैं, जिसमें हम ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग हम मेंशन करते हैं और प्रॉपरली उसको डिजाइन करते हैं. It also outlines the methods and relationships that are essential for the success of a certain job. In simpler terms, it refers to the what, how much, how many, and the order of the task for jobs. तो ब्रीफ में बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा, एक जॉब के लिए what, how much कितना चाहिए, how many कितनी क्वांटिटी चाहिए, and the order of the task for the job. तो job specification और job design is always comes after job analysis, और इसमें हम जॉब को प्रॉपरली, जब जॉब एनालाइज हो जाती है उसके बाद हम जॉब को प्रॉपरली डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. So definition दी है इसकी. Job design is the process of deciding on the content of a job in terms of its duties and responsibilities. Job के content को हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं in terms of duties and responsibilities of a particular job. On the methods to be used in carrying out the job in terms of techniques, system and procedures, and on relationships that should exist between job holder and superiors, subordinates and colleagues. So this is a definition. There are various steps involved in job design that follow a logical sequence. Those that were mentioned earlier on. Sequence क्या है job design में? बहुत सारे steps follow किए जाते हैं और उन्हीं का ही कुछ ही sequence दिया हुआ है. जैसे कि what tasks are required to be done और what task is part of the job. तो job design के टाइम हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस job को करने के लिए कौन कौन से task required है. नेक्स्ट इज हाउ आर द टास्क परफॉर्म, और उन टास्क को उस जॉब को करने का परफॉर्म कैसे किया जाएगा. नेक्स्ट व्हाट अमाउंट आर टास्क आर रिक्वायर्ड टू बी डन, और उस टास्क को करने का कितना टाइम हमें, व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड, या हमें कितने लेवल तक उस टास्क को कंप्लीट करना है. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग दिस टास्क, और उस टास्क को परफॉर्म करने का सीक्वेंस क्या रहेगा, मीन स्टेप 1, स्टेप 2, एक सिस्टमैटिक या स्ट्रक्चर वे होगी कि पहले ये काम होगा फिर दूसरा नंबर पे ये होगा. तो इस तरीके से यहाँ पे उसका प्रॉपर टास्क का सीक्वेंस बनाया जाता है. सो दिस ऑल कम्स अंडर जॉब डिजाइन. द होल प्रोसेस ऑफ जॉब डिजाइन इज एम्ड to address various problems within the organizational setup, those that pertain to one's description of a job and the associated relationships. More specifically, the following areas are fine-tuned. और इसके अलावा जॉब डिजाइन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, that is checking the work overload, एम्प्लॉयज का वर्क भी चेक करना है whether it is proper or it is overloaded. Checking upon the work underload, और अगर किसी को अपने underload वर्क दिया है मीन्स ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, वर्क अंडरलोड भी नहीं होना चाहिए. तो जॉब डिजाइन के टाइम ये सारी चीजें भी चेक करनी है. एंश्योरिंग टास्क आर नॉट रेपिटेटिव इन नेचर, क्या हमने एक एम्प्लॉय को, एक टीम को सेम ही टास्क दे रखा है जो रेपिटेटिव नेचर का है, ये भी चीजें हमें चेक करनी है. देन एंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज डू नॉट रिमेन आइसोलेटेड, कोई रह ना जाए अलग से. डिफाइनिंग वर्किंग आवर्स क्लियरली, डिफाइनिंग द वर्क प्रोसेसेस क्लियरली. तो जॉब डिजाइन में each and every aspect of job should be mentioned properly. Working hours हो चाहे working process हो, each thing should be mentioned clearly and properly. Now we will move to what are the benefits of job design. So job designs are employee input. This is the first benefit. A good job design enables a good job feedback. Employees have the option to vary tasks as per their personal and social needs, habits, circumstances
तो दिस इज रिगार्डिंग द फीडबैक ऑफ एन एम्प्लॉय। तो जॉब डिजाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। नेक्स्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, अगर एम्प्लॉय वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है तो पहले भी मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल में बताया कि उसको रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, बट अगर वो फीडबैक में आता है कि कहीं भी वो लैक कर रहा है तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट वर्क और रेस्ट शेड्यूल्स। Job design offers good work and rest schedules by clearly defining the number of hours an individual has to spend in his or her job. So work or rest schedule is must in a job. अगर हम ये चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे और कंटिन्यूअसली वर्क ले रहे हैं, एक टाइम पे आके क्या होगा, बोरिंग भी फील होगा और बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स तो टायर्डनेस भी हो जाएगी, फटीग भी फील वेरी मच। तो इस तरीके की चीजों को रिड्यूस करने के लिए जॉब डिजाइन में इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमने वर्क या रेस्ट शेड्यूल दे, कितना टाइम वर्क करने के बाद इतना टाइम आपको रेस्ट करना है। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स। A good job design allows for adjustments for physically demanding jobs by minimizing the energy spent during doing the job and by aligning the manpower requirements for the same. Adjustments का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके का एडजस्टमेंट नहीं है कि काम ये नहीं करेगा तो ये करेगा। मीन्स एम्प्लॉयज की भी कोई डिमांड्स हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको भी एडजस्ट करना। या सपोज कुछ एम्प्लॉयज उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन चीजों को भी एडजस्ट करना। तो जॉब डिजाइन इस तरीके का होना चाहिए विच बेनिफिट्स बोथ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एन एम्प्लॉय। इट इज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बोथ। Next, what are the main two goals that job design must have? It is first one is to meet the organizational requirements. Organizational requirements को meet करने वाला होना चाहिए। Organization की requirements क्या होंगी? Higher productivity, operational efficiency, quality of product or services. This is the first goal. And second one is to satisfy the needs of the individual employees like interests, challenges, achievement, accomplishment, etc. So first goal is regarding organizational requirements and second one is to satisfy the needs of an individual employees. तो ये दो goals हमारे job design का main part है। Next is purely designed jobs offer results in। अगर हमने job design proper नहीं किया तो अगर poor design jobs हैं तो उनका क्या result होगा? क्या result होगा organization पे या work पर? Boredom, increase turnover means employees ज्यादा जल्दी छुट्टियां मांगेंगे या छोड़ के जाने की बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। मोटिवेशन, लेस मोटिवेशन होगा, लो लेवल्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, लेस देन ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी भी ऑप्टिमल लेवल तक भी नहीं होगी, इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट। और ये सारी ही क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं अगर हमने जॉब डिजाइन प्रॉपरली नहीं की तो ये इसके पुअर एस्पेक्ट्स है। Then techniques of job design। तो जॉब डिजाइन में ये कुछ टेक्निक्स आएंगी। जॉब डिजाइन में आएगा जॉब रोटेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। These are the some techniques comes under job design. Job simplification, as the name you know, job simplification means job. It is requires that job be broken down into smallest units and then analyzed. Job simplification का मतलब है कि जॉब सिंपल टू सिंपल वे में डिफाइन की गई हो, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया हो, इजीली सारे ही एम्प्लॉयज या टीम्स के लिए आसान हो जाए समझना और उसको करना। तो जॉब डिजाइन में जॉब सिंप्लीफिकेशन इज मस्ट कि आप उसे इतना सिंपल करें कि आसानी से सबको समझ आ पाए और आसानी से सब लोग उस जॉब को परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट इज जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में होता है। होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एडिशन टू और एक्सपेंशन ऑफ टास्क इन द जॉब एंड जॉब बिकम्स अ मीनिंगफुल ऑपरेशन। उसी पर्टिकुलर जॉब में जब एडिशन या एक्सपेंशन हो जाता है, जॉब वही है बट उसमें एडिशन या एक्सपेंशन हो गया, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल है क्योंकि जॉब वही है उसमें एडिशन या एक्सपेंशन हो गया है। तो दैट इज कॉल्ड जॉब एनलार्जमेंट। It is the strategy adopted by many organizations to combat the ill effects of division of labor. Division of labor के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं, तो उन चीजों को खत्म करने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है कि एक ही पर्सन के पास जो जॉब है उसी में उसके लिए कुछ एक्सपैंड या एडिशन कर दिया जाए कि वही उन चीजों को भी परफॉर्म करे। Its focus is on enlarging the contents of jobs by adding tasks
रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब के कंटेंट्स पे मेन फोकस होता है और उसी जॉब में ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सपैंड कर दिया जाता है. दैट कम्स अंडर जॉब एनलार्जमेंट एंड इट इज ऑलवेज इन हॉरिजॉन्टल वे. Other what comes under it? It involves expansion of the scope and width of the job by means of assigning certain closely related operations. Next example दिया है इसमें, a clerk in an office doing typing work may be also assigned task of drafting simple letters, sorting mail and filling the papers. जो एक क्लर्क है जिसका ऑफिस में टाइपिंग का वर्क था, उसको साथ साथ में और भी वर्क असाइन कर दिए लाइक ड्राफ्टिंग सिंपल लेटर्स, सॉर्टिंग मेल एंड फिलिंग पेपर्स. This will reduce his boredom and make him satisfied with the job. His efficiency will also improve. तो ये पॉजिटिव वर्क भी करता है. अगर हम एक ही तरीके का वर्क कर रहे हैं तो हम बोर फील करेंगे, तो उसकी वर्क में हमने कुछ और चीजें ऐड करनी, तो इससे उस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट भी बढ़ा रहेगा और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेगा, मोटिवेटेड भी रहेगा. नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल. What is job enrichment? It depends on the Herzberg's two-factor theory of motivation. Motivational theories आपने OB में भी पढ़ी है, organizational behavior में उसमें Herzberg की two-factor model theory पढ़ी होगी. It always job enrichment is always depend on that theory. It is therefore based on the assumption that in order to motivate personnel, the job itself must provide opportunities for achievement. ये बोला जा रहा है कि बेसिकली ये जो हमारा जॉब एनरिचमेंट है, ये एक assumption पे बेस्ड है कि जॉब itself must provide opportunities for achievement. जो जॉब है, जो जॉब हम कर रहे हैं, वो जॉब ही ऐसी होनी चाहिए कि उससे हमें आगे और अपॉर्चुनिटीज या अचीवमेंट्स मिल सके. फॉर अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट. तुम्हारी जॉब ही ऐसी होनी चाहिए जो हमें आगे और अपॉर्चुनिटीज या ग्रोथ दिला सके. अदर व्हाट कम्स अंडर इट? It involves the vertical expansion of the job by increasing the amount of workers' responsibilities associated with the positions. ये vertical way में move करती है और यहाँ पे भी क्या होता है, वर्कर की amount of increasing the amount of workers' responsibilities. वर्कर्स की जो responsibilities पहले से हैं वो तो है, बट उसी में जब हम increase कर देते हैं vertical way, that all comes in job enrichment. एग्जाम्पल दिया है इसमें, a worker who previously only loaded boxes for delivery into a trailer, जो पहले सिर्फ boxes loaded करता था, may be given the responsibility of verifying that the customer order is correct. उसे साथ में एक और काम दे दिया कि जो ये आप boxes को ट्रेल कर रहे हैं, इसके अलावा आप साथ साथ ये भी देखें कि वेरीफाई भी करें कि कस्टमर का वो ऑर्डर करेक्ट है या नहीं है. तो दिस इज जॉब एनरिचमेंट. So this is we have studied 3 techniques under job design, simplification, job enlargement, job enrichment. Now we will move to job rotation, and it is very much easy. What is job rotation? This refers to the movement of an employee from one job to another over a designated period of time. यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय का मूवमेंट होता है एक जॉब से दूसरी जॉब में, दूसरी से तीसरी जॉब में, तो रोटेट होता है. इससे क्या होता है, इससे फायदा है, एम्प्लॉय बोर फील नहीं करेगा. दूसरा, एम्प्लॉय मल्टीपल टास्क सीखेगा, मल्टीपल वे ऑफ वर्किंग सीखेगा. इससे वो हमेशा उसकी भी ग्रोथ होगी, एक इंटरेस्ट बना रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन भी मल्टीपल वर्किंग पर्सन को चाहते हैं. सो jobs themselves are not actually changed, only employees are rotated. तो jobs change नहीं हो रही, वो एम्प्लॉय पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट था, आज वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है. तो दिस इज रोटेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज. नेक्स्ट, एम्प्लॉय who works on another job for some days or months and return back to the first job. और ऐसा भी होता है कुछ टाइम के लिए वो दूसरी जॉब में गया, फिर से वापस अपनी जॉब पे आ गया. तो इट इज रोटेशन. हम एम्प्लॉयज को रोटेट करते हैं. It would relieve the employee from boredom, monotony. यही मैंने अभी आपको बताया कि बोर्डम जैसी, फटीग जैसी सिचुएशंस को दूर करता है, इंटरेस्ट बनाता है, मोटिवेशन क्रिएट करता है, एंड इट इज बेनिफिटेड फॉर बोथ. जॉब रोटेशन इज बेनिफिटेड फॉर एन एम्प्लॉय ऑल्सो एंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. This is also intended to improve workers' self-image and provides personal growth. और वर्कर्स की पर्सनल ग्रोथ में भी अचीवमेंट्स कराता है, वर्कर की पर्सनल ग्रोथ भी होती है इससे. Next, we will move to approaches to job design. It has 3 approaches under it: engineering approach, human approach, job characteristics approach. What is engineering approach? जहाँ पे
वर्क पहले से ही द वर्क ऑफ एवरी वर्कमैन इज फुली प्लान्ड आउट बाय द मैनेजमेंट एट लीस्ट ऑन डे इन एडवांस। जहां हम पहले से ही वर्क को प्लान करके रखते हैं एडवांस में, दैट इज इंजीनियरिंग अप्रोच। सो दिस ऑल टास्क, जो भी हम टास्क देना चाह रहे हैं, जो भी हम काम करवाना चाह रहे हैं, वो उसी टाइम प्लान नहीं होगा, वो पहले से ही प्लान है। सो दिस कम्स अंडर इंजीनियरिंग अप्रोच। नेक्स्ट इज ह्यूमन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच रिकॉग्नाइज द नीड टू डिजाइन जॉब्स व्हिच आर इंटरेस्टिंग एंड रिवॉर्डिंग। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऐसी जॉब्स की डिफाइन करना चाहेगा जो इंटरेस्टिंग हो, रिवॉर्डिंग हो, ह्यूमन नेचर को बेनिफिट या ह्यूमन बीइंग्स को बेनिफिट दे सके। तो दिस ऑल कम्स अंडर दिस। तो ह्यूमन अप्रोच में ह्यूमन बीइंग के ऊपर, एम्प्लॉइज के ऊपर फोकस किया जाता है, उन्हें कैसे मोटिवेट किया जा सके, कैसे ज्यादा अच्छे से अच्छे हम वर्क करवा सके, कैसे उन लोगों को हैप्पी रख सके, कैसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, इस तरीके की सारी चीजें ह्यूमन अप्रोच में आएंगी। नेक्स्ट थर्ड अप्रोच इज जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। Theory by Hackman and Oldham states that employees will work hard when they are rewarded for the work they do and when the work gives them satisfaction. तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच में हमने हैकमैन एंड ओल्डहम की थ्योरी ली है, और वो थ्योरी क्या कहती है, वो एम्प्लॉइज के ऊपर बनी हुई थ्योरी है कि एम्प्लॉय तभी जब वर्क हार्ड तभी करता है जब उसको एप्रिशिएशन मिलता है, उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जो भी वो वर्क करता है उसके रिगार्डिंग से टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और साथ ही साथ अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होता है। तो दिस इज द थर्ड अप्रोच, जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ जॉब डिजाइन। व्हाट आर द? ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन होता है जॉब डिजाइन से, लेबर रिलेशन भी अच्छे बनते हैं क्योंकि जॉब डिजाइन में हम जॉब रोटेशंस भी कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मिलता है क्योंकि हम जॉब को एनलार्ज भी कर रहे हैं, एनरिच भी कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ जॉब भी कर रहे हैं। सो दिस ऑल कम्स अंडर जॉब एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेजेस, लैक ऑफ ट्रेनिंग, इंक्रीज वर्कलोड, कॉन्फ्लिक्ट विद नॉन पार्टिसिपेंट्स। वर्कलोड तो बढ़ेगा है जॉब एनरिचमेंट में भी, जॉब एनलार्जमेंट में भी, तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस है। और कॉन्फ्लिक्ट विद नॉन पार्टिसिपेंट्स, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई हो जाती है, और कॉन्फ्लिक्ट विद नॉन पार्टिसिपेंट्स जो एक वर्क में है और दूसरा नहीं है, या आप सीधा गए तो बिटवीन एम्प्लॉइज भी हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, तो इस तरीके की चीजें भी सामने आती हैं। तो दिस ऑल कम्स अंडर डिसएडवांटेजेस। पुअर परफॉर्मेंसेस भी सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने जॉब डिजाइन प्रॉपर्ली नहीं किया है, देन एवरीथिंग विल गो टू द नेगेटिव साइड एंड विल गिव पुअर परफॉर्मेंसेस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।